کا آغاز کریں اور سب سے پہلے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سید محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا باقاعدہ اعلان۔ گورنر ہاؤس انتظامیہ نے تقریب حلف برداری کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ گورنر پنجاب لیگ الرحمان کو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن موصول ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کے حلف برداری کی تقریب دربار ہال میں ہوگی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سید محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا باقاعدہ اعلان سامنے آیا ہے۔ گورنر ہاؤس انتظامیہ نے تقریب حلف برداری کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ گورنر پنجاب لیگ الرحمان کو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن موصول ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی حلف برداری کی تقریب دربار ہال میں ہوگی۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سید محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا باقاعدہ اعلان ہے۔ گورنر ہاؤس انتظامیہ نے تقریب حلف برداری کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ گورنر پنجاب لیگ الرحمان کو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن موصول ہو چکا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی حلف برداری کی تقریب دربار ہال میں منعقد کی جائے گی۔ راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی راؤ دلشاد، اس حلف برداری تقریب سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، تقریب حلف برداری کے حوالے سے اب تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب آئین کے آرٹیکل 224A کے تحت الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی ہوں گے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے چونکہ ابھی کچھ ہی لمحوں میں جو باقاعدہ نوٹیفیکیشن وہ موصول بھی ہوگا، اور اس سے قبل ہی تیاریوں کا چونکہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے رابطہ بھی کیا گیا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے گورنر ہاؤس انتظامیہ کی جانب سے، اور وقت کے تعین کا فیصلہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ البتہ دربار ہال میں تمام تر جو انتظامات ہیں ان کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور جو ہی گو ایڈ ملے گا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے تو فوری طور پر جو تقریب کے حوالے سے بھی جو وقت کے تعین کا بھی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے راؤ دلشاد حسین، ہمیں ایک بار پھر سے آگاہ کیجیے گا کہ کتنا ٹائم فریم ہے جو کہ لگے گا تقریب حلف برداری کا انعقاد کروانے میں، اور کب تک ممکنہ امکانات ہیں کہ تقریب حلف برداری کا انعقاد ہو جائے گا؟ دیکھیے، ابھی چونکہ جو یہ نوٹیفیکیشن ہے وہ تو چونکہ ارسال کر دیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے گورنر پنجاب کو، لیکن اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ جو اطلاعات وہ یہ ہے کہ ابھی موصول نہیں ہوا۔ جو ہی موصول ہوگا تو اس کے فوری بعد سے بھی وقت کے البتہ واٹس ایپ اور ٹیکسٹ کے ذریعے ضرور موصول ہو چکا ہے نوٹیفیکیشن، تو جو ہی نوٹیفیکیشن ملتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقاعدہ اس حوالے سے تقریب کے وقت کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے راؤ دلشاد، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب، سید محسن رضا نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ اب تقریب حلف برداری کا بھی انعقاد جو ہے وہ کچھ دیر بعد ہونے جا رہا ہے، تو ذرا اپنی رائے دیجیے گا۔ ان کی پروفائل پر ایک آؤٹ لک ہے، اس کی پروفائل پر ایک نظر ڈالیے گا۔ بہت شکریہ۔ محسن صاحب کا جو تعارف ہے اس شہر کے لیے اور اس ملک کے لیے قطعی طور پر کسی ایسے فرد کا نہیں ہے کہ جس سے ہمارے خاص و عام لوگ واقف نہ ہوں، اور لاہور شہر کے ساتھ تو جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے اس سے۔ محسن صاحب کی ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ ریزیڈنٹ ماڈل اسکول میں ہوئی لاہور میں ہی، پھر گریجویشن کی گورنمنٹ کالج سے ہوئی، اس کے بعد یہ میامی چلے گئے وہاں یونیورسٹی میں، اور بہت چھوٹی عمر کے اندر جو ان کی ایک خاص پہچان ہے، انہوں نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ میڈیا کی انڈسٹری کے اندر انٹری دی، اور پہلے CNN کے بیورو چیف بنے۔ اس میں بھی ان کا منفرد اعزاز یہ ہے ان کا کہ یہ کم عمر ترین ریجنل بیورو چیف تھے CNN جیسے معتبر ادارے کے۔ تو اس دوران جب محسن صاحب نے عملی صحافت جوائن کی تو دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہو رہے تھے، افغان وار بھی ان میں سے ایک تھی، اس کو بھی انہوں نے کور کیا، بہت اہم ایونٹ۔ اور پھر انہوں نے اپنی خود جو میڈیا ہاؤس ہے وہ 42 کے نام سے جب لاہور سے لانچ کیا تو بہت سارے لوگ حیران تھے کہ اس طرح کا چینل کیسے چلے گا، کیونکہ چینلوں کا ایک سیٹ پیٹرن تھا جو نظر آ رہا تھا ہمیں، لیکن وہ
इतनी कामयाबी से चला कि लाहौर के शहरी और 42 एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हो गए। और मौसम साहब ने हमेशा टीम वर्क के तहत काम किया है। दफ्तर का सीनियर मोस्ट आदमी हो ओहदे के लिहाज से या जूनियर मोस्ट ओहदे के लिहाज से उनको ये एक ही तरह का ट्रीटमेंट देते हैं और साथ लेके चलते हैं। यही इनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज भी है, खुलूस नीयत और टीम वर्क, लोगों को लेके चलना और सिमत अपने दुरुस्त रखते हैं। फिर इन्होंने जिस तरीके के साथ अपने मीडिया को इस्तेमाल किया तो उसमें मुआशरे के अंदर इंतशार कम किया, सियासी हमंगी पैदा करने की कोशिश भी की और लोगों के मसाइल को भी फोकस किया। तो अब ये जो 4 नाम सामने आए थे, इनके प्रोफाइल को एक गैर जानिबदार शहरी के तौर पर भी देखें तो यकीनी तौर पर मोहसिन साहब का प्रोफाइल दीगर 3 जो शख्सियात हैं उनसे बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा फर्क था उसमें। इसीलिए आपने देखा कि आज जब आईनी तौर पर यह मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू गया तो वहाँ पर कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ कि मोहसिन साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर पंजाब होंगे। तो चूँकि एक बेहतरीन शख्सियत का चुनाव किया गया है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इसके असरात भी बहुत बेहतर बल्कि बेहतरीन हैं। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। राव दिलशाद, आज इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इजलास हुआ उससे मुतल्लिक तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि कौन से पॉइंट्स थे जो रखे गए, प्रोफाइल चारों जो मेंबरान थे, जो उम्मीदवार थे, उनकी रखी गई, तो फिर क्या बहस व तकरार हुई, क्या पॉइंट्स पेश किए गए जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि सैयद मोहसिन रजा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया जाए। राव दिलशाद हुसैन से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। नवीद चौधरी साहब, आपकी तरफ आएंगे। अगर इस मामले को ज़रा शुरू से देखें तो आपने देखा कि मुतफ़िका तौर पर यह फैसला नहीं किया गया कि किस नाम पर इतफ़ाक़ कर लिया जाए, किसको निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया जाए। कमेटी भी इसका फैसला नहीं कर सके, कोई इतफ़ाक़ राय नहीं हुआ। और आज इलेक्शन कमीशन ने जब तमाम तर प्रोफाइल्स देखने के बाद ये ऐलान किया कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया जाए, उसके बाद फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उसमें वो कहते हैं कि हमें ये नाम नामंजूर है। तो बताइएगा, उनके निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर पर क्या अपने मफादात है? देखिए, पीटीआई ने तो एक वतीरा बना रखा है, वो तो किसी को भी नहीं मानते। वो तो पहले दिन से ही मैं ना मानू की रट लगा रखी है उन्होंने, और वो किसी भी होते पर कोई भी शख्स बैठा हो वो कहते हैं हम इसको मानते ही नहीं। तो अगर उन्होंने मोहसिन साहब के नाम से भी अदम इत्तेफाक किया है तो अगर मैं समझता हूँ जो दूसरा नाम अपोजिशन की जानब से पेश किया गया था चीमा साहब का, वो आ जाता हो, क्योंकि उन्होंने कहना था उसको भी हम नहीं मानते। बल्कि ये तो अपने लगाए हुए लोगों की जो है बटी प्लीज कर रहे हैं। आपने देख ही लिया जो कुछ उन्होंने अपने सबसे बड़े मौसम जनरल कमरजीत बाजवा के साथ किया और कर रहे हैं, वो आपके सामने है। और जिस तरह से अपनी बातों पर यूटर्न लेते हैं, परवेज इलाही साहब को पंजाब का थोड़ा डाकू कहते थे, बाद में उनको अपना वज़ीर आला बना लिया और अपने पार्टी को भी उनको पेश करते कर रहे हैं। तो इनकी तो कोई जुबान है ना, इनका कोई करैक्टर है। और इनकी सियासत चूंकि मनफी है, और मनफी सियासत में बुनियादी तकाज़े यही है कि हर वो बात करो जो उलट हो ताकि हमारी अहमियत बनी रहे। तो इसी शोर गुगे के अंदर इन्होंने ज़ाहिर है मोहसिन साहब के नाम को मुताज़ करने की कोशिश की और बड़ी कभी किस्म की कैंपेन भी चलाई इन्होंने, और ज़ाहिर है वो इनके मिजाज का एक हिस्सा है। लेकिन आइन प्रिवेल किया और आइन के तहत फैसला हो गया। ये फैसला हुआ, ठीक है। नवीद चौधरी हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तजज़ियाकार मियां ताहिर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने ज्वाइन किया है। मियां ताहिर साहब, ये अहम फैसला जो है सामने आया, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। तो आप बहुत करीब थे, मोहसिन नकवी साहब को जानते हैं, तो आप ज़रा उनकी सहाफ़ती ज़िंदगी पर रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, मैं उनको करीब से जानता हूँ और इसीलिए मैं अपने नाज़रीन को इस हवाले से, इस वक्त जो आपके नाज़रीन हैं उनको इस हवाले से अपडेट करूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ये जर्नलिस्ट की हैसियत से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। और मैं आपको बताऊं कि आज इस तकर्री से पहले तक वो जर्नलिस्ट ही थे, यानी कि उन्होंने एक मीडिया ओनर के तौर की हैसियत से, जिस तरह से जो ओनर की जो एक ख़ास मेंटालिटी होती है, उन्होंने कभी इस तरह बिहेव नहीं किया और वो जर्नलिस्ट ही रहे और जर्नलिस्ट ही हैं, वो तबन जर्नलिस्ट हैं। और मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ कि जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो मेरिट पे बात करता है, वो उसका गैर ज़रूरी झुकाव किसी तरफ नहीं होता। तो इस लिहाज से जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो मेरिट के बंदे हैं, वो मेरिट पे बात करते हैं। हमारे साथ, हमारे कोलीग, हम सब के साथ हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो बहसीयत सहाफ़ी उन्होंने सहाफ़त में मेरिट, बल्कि उन्होंने बहसीयत
मीडिया ऑनर भी उन्होंने हमेशा मेरिट पे बात की है और कभी किसी का हक गजब नहीं किया, किसी का हक मारने की कोशिश नहीं की और जो जिसका हक है वो उसको मिला है। यही वजह है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जितने कारकुन हैं वो उनसे बहुत खुश हैं, इसलिए कि उनका बराह रास्त हर एक के साथ ताल्लुक है। वो अपना और फिर वो ताल्लुक को निभाते हैं जो किसी के साथ हो, वो छोटा हो कि बड़ा हो, और वो एक मेहनती, मुतहर्रिक और पुरअज़्म शख्सियत हैं। एक बहुत ही मुख्तर मुद्दत में उन्होंने माशाल्लाह ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े मनाज़िल उन्होंने तय की हैं और ये किसी कोई पुरअज़्म आदमी, कोई मेहनती आदमी ही ये सब कुछ कर सकता है। और वो दर्द दिल रखने वाले, शफाफ दिल वाले, साफ दिल वाले और नफरतों से नफरत करने वाले और लोगों से मोहब्बत करने वाले हैं। और ये जो इतराज़ करने वाले हैं, इनको मैं समझता हूँ इनके मुंह बंद हो जाएंगे जब उनकी कारकर्दगी को देखेंगे, क्योंकि वो प्योरली मेरिट पे काम करेंगे और इतने बड़े सूबे को इस वक्त चलाना, जो आपको पता है कि जिस तरह के चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये सूबा है और दूसरा बड़ा चैलेंज है इलेक्शन और तीसरा बड़ा चैलेंज इस वक्त आपको पता है कि वो पूरे मुल्क के साथ है और पंजाब क्योंकि बड़ा है तो उससे और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत सी सरहदें इसको मिलती हैं सूबों की, तो वो है लॉ एंड ऑर्डर का। और फिर ये है कि यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल छोड़ के गए हैं परवेज़ इलाही के आटे का बहरान है, यहाँ पे महंगाई का तूफान है जो कि सूबाई हुकूमत का काम था, कीमतों का कंट्रोल और आटे की फ्राहमी और इसी तरह जो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी फ्राहमी, और वो नहीं कर सके, वो उसमें फेल रहे हैं। सिवाय इसके उन्होंने अपने गुजरात मंडी बहाउद्दीन और ज़ाती दोस्तों और ज़ाती जेब के लिए उन्होंने सारी कोशिशें की हैं और उसमें उन्होंने पंजाब की तरफ तवज्जो नहीं दी। और इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है उसको संभालना बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे पूरा यकीन है कि मोहसिन नकवी साहब इस चैलेंज को ना सिर्फ वो पूरा करेंगे बल्कि इससे आगे जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ज़िंदगी में उन्होंने जो भी चैलेंज लिया है उसको उन्होंने पूरा किया है और वो मंजिल हासिल करके ही रहे हैं। तो इसलिए जो जहाँ तक मामला अभी आप बात कर रहे थे कि वो अपोजिशन का एतराज़, तो अपोजिशन को देखें, अगर आप पीटीआई और उनकी सियासत को, इमरान खान की सियासत को देखें तो उनकी सियासत किसी तौर पे भी डिलीवरी की सियासत नहीं है, डिलीवरेंस की सियासत नहीं है। उनकी सियासत नफरत की सियासत है, उनकी सियासत तनाज़ात की सियासत है, उनकी सियासत और उनका नैरेटिव हमेशा चीज़ों को मुतनाज़ बना के और सीधी चीज़ को उल्ट पेश करके और सच को झूठ में बदल के वो उन्होंने आज तक अपना नैरेटिव बनाया है। अदरवाइज अगर आप देखें तो उनकी कारकर्दगी के बना पे तो वो खुद भी बात नहीं कर सकते, उनके अपने मुंह में ये अल्फाज नहीं होते कि वो ये बता सके कि हमने ये लोगों को दिया है। उन्होंने लोगों को दिया तो कुछ नहीं, पाकिस्तान को दिया तो कुछ नहीं, पाकिस्तान से लिया ही है। और अब वो जिस तरह से उन्होंने ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं और जिस तरह से उन्होंने सियासत को बंद गली में धकेलने की कोशिश की है और वो उस कोशिश में खुद बंद गली में चले जा चुके हैं, तो इस तरह जो बंद गली में चला जाए तो उसके पास और कोई चांस नहीं रहता और कोई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मासवाए कि वो हाथ को मारे और वो उल्टे सीधे बयान दे और लोगों को रिजेक्ट करे। यहाँ पे कोई लिटरली कोई फरिश्ता आगे बैठ जाए तो वो उसका अभी जी मियां ताहिर साहब, यकीनन मोहसिन नकवी एक बेदाग माजी के हामिल शख्स हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो 4 नाम सामने आए थे, इनके प्रोफाइल को एक गैर जानिबदार शहरी के तौर पर भी देखें तो यकीनी तौर पर मोहसिन साहब का प्रोफाइल दीगर 3 जो शख्सियात हैं उनसे बहुत आगे, बहुत ज़्यादा फर्क था उसमें। इसीलिए आपने देखा कि आज जब आईनी तौर पर यह मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू गया तो वहाँ पर कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ कि मोहसिन साहब जो हैं वो निगरान ज़िला पंजाब होंगे। तो चूँकि एक बेहतरीन शख्सियत का चुनाव किया गया है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इसके असरात भी बहुत बेहतर बल्कि बेहतरीन हैं। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। राव दिलशाद, आज इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इजलास हुआ उससे मुतल्लिक तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि कौन से पॉइंट्स थे जो रखे गए, प्रोफाइल चारों जो मेंबरान थे, जो उम्मीदवार थे, उनकी रखी गई, तो फिर क्या बहस व तकरार हुई, क्या पॉइंट्स पेश किए गए जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि सैयद मोहसिन रजा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया जाए।
राव दिलशाद हुसैन से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। नवीद चौधरी साहब, आपकी तरफ आएंगे। अगर इस मामले को ज़रा शुरू से देखें तो आपने देखा कि मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला नहीं किया गया कि किस नाम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया जाए, किसको निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया जाए। कमेटी भी इसका फ़ैसला नहीं कर सके, कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। और आज इलेक्शन कमीशन ने जब तमाम तर प्रोफाइल्स देखने के बाद ये ऐलान किया कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया जाए, उसके बाद फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उसमें वो कहते हैं कि हमें ये नाम नामंजूर है। तो बताइएगा, उनके निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर पर क्या अपने मफादात है? देखिए, पीटीआई ने तो एक वतीरा बना रखा है, वो तो किसी को भी नहीं मानते। वो तो पहले दिन से ही मैं ना मानू की रट लगा रखी है उन्होंने, और वो किसी भी होते पर कोई भी शख्स बैठा हो वो कहते हैं हम इसको मानते ही नहीं। तो अगर उन्होंने मोहसिन साहब के नाम से भी अदम इत्तफाक किया है, तो अगर मैं समझता हूँ जो दूसरा नाम अपोजिशन की जानब से पेश किया गया था हाजी चीमा साहब का, वो आ जाता, क्योंकि उन्होंने कहना था उसको भी हम नहीं मानते। बल्कि ये तो अपने लगाए हुए लोगों की जो है बटी प्लीज कर रहे हैं। आपने देख ही लिया जो कुछ उन्होंने अपने सबसे बड़े मौसम जनरल कमरजीत बाजवा के साथ किया और कर रहे हैं, वो आपके सामने है। और जिस तरह से अपनी बातों पर यूटर्न लेते हैं, परवेज इलाही साहब को पंजाब का थोड़ा डाकू कहते थे, बाद में उनको अपना वज़ीर आला बना लिया और अपने पार्टी को भी उनको पेश करते कर रहे हैं। तो इनकी तो कोई जुबान है ना, इनका कोई करैक्टर है। और इनकी सियासत चूंकि मनफी है, और मनफी सियासत में बुनियादी तकाजे यही है कि हर वो बात करो जो उलट हो, ताकि हमारी अहमियत बनी रहे। तो इसी शोर गुगे के अंदर इन्होंने ज़ाहिर है मोहसिन साहब के नाम को मुताज़ करने की कोशिश की, और बड़ी कभी किस्म की कैंपेन भी चलाई इन्होंने, और ज़ाहिर है वो इनके मिजाज का एक हिस्सा है। लेकिन आइन प्रिवेल किया और आइन के तहत फैसला हो गया। ये फैसला हुआ, ठीक है। नवीद चौधरी हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तजज़ियाकार मियां ताहिर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने ज्वाइन किया है। मियां ताहिर साहब, ये अहम फैसला जो है सामने आया, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। तो आप बहुत करीब थे, मोहसिन नकवी साहब को जानते हैं, तो आप ज़रा उनकी सहाफ़ती ज़िंदगी पर रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, मैं उनको करीब से जानता हूँ, और इसीलिए मैं अपने नाज़रीन को इस हवाले से, इस वक्त जो आपके नाज़रीन हैं उनको इस हवाले से अपडेट करूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ये जर्नलिस्ट की हैसियत से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। और मैं आपको बताऊं कि आज इस तकर्री से पहले तक वो जर्नलिस्ट ही थे। यानी कि उन्होंने एक मीडिया ओनर के तौर की हैसियत से, जिस तरह से जो ओनर की जो एक ख़ास मेंटालिटी होती है, उन्होंने कभी इस तरह बिहेव नहीं किया, और वो जर्नलिस्ट ही रहे, और जर्नलिस्ट ही हैं, वो तबन जर्नलिस्ट हैं। और मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ कि जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो मेरिट पे बात करता है, वो उसका गैर ज़रूरी झुकाव किसी तरफ नहीं होता। तो इस लिहाज से जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो मेरिट के बंदे हैं, वो मेरिट पे बात करते हैं। हमारे साथ, हमारे कोलीग, हम सब के साथ हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो बहसीयत सहाफ़ी उन्होंने सहाफ़त में मेरिट, बल्कि उन्होंने बहसीयत मीडिया ओनर भी उन्होंने हमेशा मेरिट पे बात की है, और कभी किसी का हक गज़ब नहीं किया, किसी का हक मारने की कोशिश नहीं की, और जो जिसका हक है वो उसको मिला है। यही वजह है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जितने कारकुन हैं वो उनसे बहुत खुश हैं, इसलिए कि उनका बराह रास्त हर एक के साथ ताल्लुक है। वो अपना और फिर वो ताल्लुक को निभाते हैं जो किसी के साथ हो, वो छोटा हो कि बड़ा हो। और वो एक मेहनती, मुतहर्रिक और पुरअज़्म शख्सियत हैं। एक बहुत ही मुख्तर मुद्दत में उन्होंने माशाल्लाह ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े मनाज़िल उन्होंने तय किए हैं, और ये किसी कोई पुरअज़्म आदमी, कोई मेहनती आदमी ही ये सब कुछ कर सकता है। और वो दर्द दिल रखने वाले, शफाफ दिल वाले, साफ दिल वाले, और नफरतों से नफरत करने वाले, और लोगों से मोहब्बत करने वाले हैं। और ये जो इतराज़ करने वाले हैं, इनको मैं समझता हूँ इनके मुंह बंद हो जाएंगे जब उनकी कारकर्दगी को देखेंगे, क्योंकि वो प्योरली मेरिट पे काम करेंगे। और इतने बड़े सूबे को इस वक्त चलाना, जो आपको पता है कि जिस तरह के चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये सूबा है, और दूसरा बड़ा चैलेंज है इलेक्शन, और तीसरा बड़ा चैलेंज इस वक्त आपको पता है कि वो पूरे मुल्क के साथ है। और पंजाब क्योंकि बड़ा है तो उससे और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सी सरहदें इसको मिलती हैं सूबों की। तो वो है लॉ एंड ऑर्डर का। और फिर ये है कि यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल छोड़ के गए हैं परवेज इलाही के, आटे का बहरान है, यहाँ पे महंगाई का तूफान है, जो कि सूबाई हुकूमत का काम था, कीमतों का कंट्रोल और आटे की फ्राहमी, और इसी तरह जो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी फ्राहमी, और वो नहीं कर सके, वो उसमें फेल रहे हैं।
सिवाय इसके उन्होंने अपने गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और जाती दोस्तों और जाती जेब के लिए उन्होंने सारी कोशिशें की हैं, और उसमें उन्होंने पंजाब की तरफ तवज्जो नहीं दी। और इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है उसको संभालना बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे पूरा यकीन है कि मोहसिन नकवी साहब इस चैलेंज को ना सिर्फ वो पूरा करेंगे बल्कि इससे आगे जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जिंदगी में उन्होंने जो भी चैलेंज लिया है उसको उन्होंने पूरा किया है और वो मंजिल हासिल करके ही रहे हैं। तो इसलिए जो जहाँ तक मामला अभी आप बात कर रहे थे कि वो अपोजिशन का एतराज, तो अपोजिशन को देखें, अगर आप पीटीआई और उनकी सियासत को, इमरान खान की सियासत को देखें तो उनकी सियासत किसी तौर पे भी डिलीवरी की सियासत नहीं है, डिलीवरेंस की सियासत नहीं है। उनकी सियासत नफरत की सियासत है, उनकी सियासत तनाज़ात की सियासत है, उनकी सियासत और उनका नैरेटिव हमेशा चीज़ों को मुतनाज़ बना के और सीधी चीज़ को उल्ट पेश करके और सच को झूठ में बदल के वो उन्होंने आज तक अपना नैरेटिव बनाया है। अदरवाइज अगर आप देखें तो उनकी कारकर्दगी के बना पे तो वो खुद भी बात नहीं कर सकते, उनके अपने मुंह में ये अल्फाज नहीं होते कि वो ये बता सके कि हमने ये लोगों को दिया है। उन्होंने लोगों को दिया तो कुछ नहीं, पाकिस्तान को दिया तो कुछ नहीं, पाकिस्तान से लिया ही है। और अब वो जिस तरह से उन्होंने ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं और जिस तरह से उन्होंने सियासत को बंद गली में धकेलने की कोशिश की है, और वो उस कोशिश में खुद बंद गली में चले जा चुके हैं। तो इस तरह जो बंद गली में चला जाए तो उसके पास और कोई चांस नहीं रहता, और कोई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मासवाए कि वो हाथ को मारे और वो उल्टे सीधे बयान दे और लोगों को रिजेक्ट करे। यहाँ पे कोई लिटरली कोई फरिश्ता आगे बैठ जाए तो वो उसका अभी जी मियां ताहिर साहब, यकीनन मोहसिन नकवी एक बेदाग माजी के हामिल शख्स हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।